Hello students, in this video we discuss about uh, something electric dipole, and previous video we discussed about the electric field due to an electric dipole. In this video we discuss about the electric potential due to an electric dipole. You know very well there are two special cases. Okay, so first of all we discuss the uh, mm, discuss about the electric potential due to an electric dipole in uh, and-on position or axial position. Okay, yeah. So electric potential due to an electric dipole at and on position or axial position or tan A position. Okay, but famous name is and on position or axial position. Okay, so you know very well the geometrical structure of an electric dipole is like this. Okay, suppose here is negative charge minus q and here is positive charge plus q, and the separation between them is 2L, and the midpoint of this separation is O, and this point is denoted by A and this point is denoted by B. So this separation will be L and also this will be L. Now we want to find out the electric potential due to this electric dipole at axial position. But you know very well about axial position, which passing through this passing through the line of dipole. Okay, like this. ये हो गया. Suppose this is point P, where we want to find out the potential due to this electric dipole. This point may be here and this point may be here on axial position. Okay, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका माइनस क्यू इधर है या इधर है, बट बुक्स में जनरली माइनस क्यू इधर एंड प्लस क्यू इधर लिया गया है. चलिए अब आप देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कॉम्बिनेशन है टू पॉइंट चार्ज का. तो हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ऐसे मान सकते हैं कि एक पॉइंट चार्ज आइसोलेटेड यहाँ पर है, एक पॉइंट चार्ज आइसोलेटेड यहाँ पर है, और दोनों के कारण यहाँ पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे. पोटेंशियल आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए उस पर इन दोनों का एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. आप उन्हें अलजेब्रिकली सिंपल रूल से ऐड कर सकते हैं. इसलिए ये आर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपैरिजन में इजी हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो सपोज कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज V1 एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज Q2. ओके, तो आप एक चीज और कंसीडर कर लीजिए. सपोज दिस सेपरेशन from here to where there is small r, then this separation will be equals to r minus L, because this is r and subtract this, then will be r minus L, and for this is r and extra is L, so this will be r plus L. Okay, now you know very well electric potential due to a point charge at any point is given by 1 by 4 pi epsilon naught q by r. देखिए कंसीडर कर लीजिएगा, मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, तो डायरेक्ट आर्टिकल पर चलते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए जनरली यहां पर कौन सा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
charge minus q at point P, which is V1 equals to 1 by 4 pi epsilon naught at charge is q by separation is AP. एंड सी, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए कि वेक्टर क्वांटिटीज में हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिया था, और मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। बट स्केलर्स में तो मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते, हम तो डायरेक्ट वैल्यू की बात करते हैं, और वैल्यू आपकी न्यूमेरिकली निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी, इसलिए विद साइन आपको यूज करना है। ये आपका डायरेक्शन होती नहीं इसमें, दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय AP is R plus N. This is equation number first. Similarly, electric potential due to charge plus Q at point P is denoted by V2, 1 by 4 pi epsilon naught, and charge is plus Q by separation is BP, and this is 1/4 pi epsilon naught, and Q divided by BP is R minus L. Equation second. So for this system of two charges, which is known as electric dipole, so electric potential at point P due to electric dipole is V, and this will be V1 plus V2 simply, and V1 is 1/4 pi epsilon naught Q by R plus L with negative sign, plus V2 is 1/4 pi epsilon naught Q by R minus L. Now simplify this term. आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, and now simplify this term. After simplifying this term we get V equals to Q by 4 pi epsilon naught कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आपको मिलेगा 1 by R minus L minus R by R plus L. चला दिए, R माइनस L प्लस का है तो शुरू में ले लिया, और ये माइनस वाला आपने सेकंड टर्म। अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका हुआ R माइनस L और R प्लस L। यहां पर आप देखिए R प्लस L माइनस R माइनस L, सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा, और Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट R प्लस L माइनस R प्लस L डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इसका डिफरेंस फॉर्मूला, R से R आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू 2L डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ओके, तो आपने पढ़ा था कि एक स्पेशल क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज if the electric dipole moment of dipole
is vector p, then okay, then this will be p equals to q into 2l, and in the vector form vector p equals to q into vector 2l, and the direction of l is from minus q to plus q. एंड वाई, इसका आंसर आपको हमने एक वीडियो में दिया था, वहां पर देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड। तो चलिए, देन v विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। बट यू नो वेरी वेल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, द सेपरेशन बिटवीन द माइनस q एंड प्लस q चार्ज इज वेरी स्मॉल इन द कंपेरिजन ऑफ द सोर्स पॉइंट, सॉरी फील्ड पॉइंट। ओके, जहां पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसे फील्ड पॉइंट बोलते हैं, और जहां पर आपका इफेक्ट करने वाला ऑब्जेक्ट रखा रहता है उसे बोलते हैं सोर्स पॉइंट। ठीक है, तो इफ कह देते हैं यहां पर, इफ r इज वेरी ग्रेटर देन l, देन वी कैन नेग्लेक्ट l स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू r स्क्वायर, है ना, बट इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन, नॉट इन मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन। आपको बताया गया था क्यों, ठीक है ना, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r स्क्वायर, दैट इज, in that case v is directly proportional to 1/r square। ओके, तो यहां पर देखिए, पॉइंट चार्ज के केस में आपका पोटेंशियल 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बट डाइपोल के केस में आपका 1/r स्क्वायर। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो क्वाड्रोपोल होगा उसके लिए 1/r³, और जो आपका ऑक्टोपोल होगा 1/r⁴ होगा। तो ऐसे चल जाएगा। ठीक है, तो यही आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। यदि आप डायग्रामेटिकली शो करना चाहते हैं तो इस प्रकार शो कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर क्या हुआ r, और ये यहाँ पर आपका v हो गया। तो आप देखें जैसे r इंक्रीज होगा v आपका डिक्रीज होगा, बट जब r 0 होगा तब v आपका मैक्सिमम यानी कि इनफाइनाइट होगा और धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। जब r आपका गोज टू 0 होगा, इन्फिनिटी होगा, तब v आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपकी डिपेंडेंसी हो गई 1/r स्क्वायर। ओके, आई थिंक आपको आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो प्लीज़ वह कमेंट कीजिएगा, चाहे तो व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कर दीजिए, और यदि आप यूट्यूब पे नहीं कर सकते तो मेरे पर्सनल नंबर पर, आप व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 89795589 इफ़ यू हैव एनी डाउट। ओके, और अपना फीडबैक जरूर दीजिए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ और उसमें टॉपिक्स को इम्प्रूव कर सकूँ जो आपको प्रॉब्लम्स फेस होती है। ठीक है, तो लाइव वीडियोस भी बनाएंगे यदि आप चाहते हैं तो, बट अभी यूट्यूब से पॉसिबल नहीं है लाइव वीडियो बनाना, तो उसके लिए जूम ऐप की यूज़ किया जाएगा, बट आई थिंक मुझे वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।